So for this, like I'm telling, when you're having any yoga asana and all, make sure you're having good water for inhaling. It may cause like infection. So it must be done under like practitioner, like जो भी अच्छे से practice किया हुआ है उनके under में ही करिए, खुद से मत करिए, है ना. या आप सीख रहे हैं तो properly सीख के करिए. अगर infected water अंदर जाएगा तो प्रॉब्लम कर सकता है. I had started one more case that one girl from south somewhere like Coimbatore and whatever the place, she had meningitis or swelling in brain. Which part I don't remember that, but swelling in brain due to infected water reached to brain, and the reason was that. So make sure you're having good water and you are having any swimming and all. It must be hygienic place. So now pantothenic acid. Okay, biotin we have completed also. Now vitamin C. We also completed some part of vitamin C. It is very important role in our health for fighting infections and all. Okay. So it should be in your daily diet because it is water soluble and we can't store in our body. So you have to take every day in your diet. And make sure you're having one fruit meal in your diet because most of the vitamin C available in fruits. Okay, so fruits are rich in vitamin C. You must having, if you're having seasonal fruit, you're having good amount of vitamin C. And it must be in your daily diet. That is important. We are taking seriously our rice and roti. Like that only we have to give importance to our fruit intake. Now vitamin D. Vitamin D is a generic term and can generic मतलब आम तौर पे हम vitamin D बोलते हैं इसको. Okay. Either be made in the skin or cholesterol like precursor. हमारे स्किन के अंदर ये बनता है, हम डायरेक्टली इसको नहीं लेते, सनरेज लेते हैं, उसके बाद हम इसको स्किन के अंदर खुद से बनाते हैं. ठीक है. एक्सपोजर ऑफ सनलाइट होगा तभी हम इसको ले पाएंगे. हमने आपने अगर कोई योगा का कोर्सेज भी किया होगा उसमें भी बताते हैं कि आप सनलाइट को यूज करिए. सो everyone have to go in sunlight minimum 15 minutes per day and it should be morning time or evening time. आजकल क्या होता है, ज्यादातर एसी में बैठते हैं ना, तो फिर विटामिन डी डिफिशियंसी हो जाती है. तो ध्यान रखें, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप मॉर्निंग वॉक कर लेंगे तो आपके साथ में एक्सरसाइज भी हो जाएगी एंड आपका, या आप योगा करते हैं तो योगा भी हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें ओपन एरिया में करने के लिए. What the food sources? अब फूड में कहाँ से मिलेगा? Also called sunshine vitamin D is easily manufactured in the skin from 7-dehydrocholesterol on exposure of sunlight. As already mentioned above, small amount are present in dairy product because it is a fat soluble. So dairy product में आपको मिल जाएगा. So milk, cheese, butter, margarine एंड क्रीम. अगर आप स्किम्ड मिल्क खाएंगे तो आपको बहुत मिनिमम अमाउंट मिलेगा. सो रिकमेंडेड मिल्क इज डबल टोन मिल्क और सिंगल टोन्ड. ऑयस्टर एंड सर्टेन वेराइटीज ऑफ फिश आल्सो हैव विटामिन डी. जनरली सी फूड में विटामिन डी होता है. So we have seen that if it is not just through diet, sunlight can also help us to manufacture vitamin D. अगर हम खा नहीं रहे विटामिन डी को, so we can take vitamin D and we can manufacture in our body. Vitamin D formed in the skin by the direct eradication of
provitamin present in the skin is directly absorbed into the bloodstream. डायरेक्टली हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको हमें कुछ भी, जैसे हम पहले भी पढ़ा है कि विटामिन को हमको ब्रेक डाउन और डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो डायरेक्टली स्किन में हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं. स्किन में थोड़ी फैट की लेयर लेकिन होनी चाहिए जितनी रिकमेंडेड है. द विटामिन बहुत ज्यादा अगर मेरास्मस के जैसे पेशेंट्स होते हैं, बिल्कुल स्किनी होते हैं, उनके बॉडी में फैट की लेयर बिल्कुल भी नहीं होती है, तो उस केस में आपका विटामिन डी डिफिशियंसी भी पाया जाएगा. The vitamin is stored in concentrated quantities in the liver and a lesser extent in the skin. कि लिवर में हमने पहले भी पढ़ा है फैट स्टोर होता है, तो फैट के साथ साथ जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन है वो स्टोर होता है. तो यहाँ पे मेंशन है कि विटामिन डी भी लिवर में हम स्टोर कर सकते हैं. Vitamin D is through the bile into the small intestine and consequent fecal excretion. अब निकलेगा कहाँ से? एक्सेस होने से, फीकल एक्सक्रीशन से. बाइल कहाँ पे रिलीज होता है? डिओडियनम में. हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि जो भी फैट होता है खाने में उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस लगता है. बाइल जूस कहाँ से रिलीज हो, कौन बनाता है? लीवर बनाता है. लीवर बना के गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है और गॉल ब्लैडर पास करता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? तो डिओडिनम वाले पार्ट में. ओके तो वहां से पास होके खाने के साथ एक्सेस वाला आपका स्टूल से एक्सक्रीट हो जाएगा. और वही जो विटामिन सी था वो कहाँ से एक्सक्रीट होगा? विटामिन सी होगा आपका यूरिन से. Only less than 4% of the intake of vitamin is excreted by the urinary pathway. Functions, vitamin D is required to maintain normal blood level of calcium and phosphate, which are in turn needed for the normal mineralization of bone. मतलब bone पे minerals का layers करना, like calcium का layer करना. Calcium is a mineral, okay? तो उसको mineralization करना. मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा. अगर हमारा विटामिन डी डिफिशिएंट होगा बॉडी तो हमें क्रैम्प्स भी हो सकता है. ओके तो अगर किसी को पैरों में बहुत दर्द है, पैरों की जो बैक काफ मसल्स होती है ना पैरों में, बहुत जो ज्यादा चलते हैं या तेज चलते हैं तो समटाइम्स हमें दर्द होने लगता है. क्यों? क्योंकि या तो उसको कैल्शियम डिफिशियंसी है या तो उसको विटामिन डी डिफिशियंसी है. ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है. या जो एथलीट्स होते हैं उनको स्पेशली ध्यान दिया जाता है कि उनका कैल्शियम, प्रोटीन एंड विटामिन डी प्रॉपर है कि नहीं. या जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको रनिंग या फुटवर्क का यूज करना होता है. Nerve contraction D, general circulation function in all cell of the body. Metabolization of bone, calcium and phosphorus. इनका metabolization कैसे होता है? The function of vitamin D are mediated by this vital vitamin D hormone by homeostatic mechanism, which involve the hormones acting on intestine, kidney and bone to increase serum calcium and phosphorus level. This helps to achieve a normal blood calcium concentration and maintenance of calcium hemostasis. Hemostasis मतलब उसका जितना लेवल चाहिए उसको मेंटेन करके रखता है. hemostasis मतलब एक नॉर्मल लेवल बना के रखता है. ठीक है, सेम लेवल को बना के रखता है, मेंटेन करता है. मिनरलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन. नया बोन बनेगा तब भी विटामिन डी लगेगा. नया बोन कब बनेगा? जब न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, है ना, उनके बोन फॉर्मेशन होता है. विटामिन डी प्लेज अ रोल इन द सिंथेसिस ऑफ अ प्रोमिनेंट नॉन कोलेजिनियस प्रोटीन ऑस्टियोकैल्सिन. ऑस्टियोकैल्सिन मतलब ऑस्टियो से मतलब a vitamin key dependent protein found in the bone matrix and dentine. डेंटाइन कहाँ पे होता है? टीथ का पार्ट होता है डेंटाइन.
which is associated with newborn formation. तो इन सब चीजों का जरूरत होता है कहाँ पे? बोन फॉर्मेशन में, डेंटाइन फॉर्मेशन में. विटामिन डी इज रिक्वायर्ड फॉर टीथ फॉर्मेशन, न्यूबॉर्न फॉर्मेशन. Bone growth and development, calcification of osteoid tissue. जनरली क्या होता है, जो लोअर जो एल्डर पीपल होते हैं उनका कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन होने लगता है बोन से. काफी जो कैल्शियम है वो टूटने लगता है बोन से. तो वहां पे हमको विटामिन डी का रिक्वायरमेंट पे ध्यान देना है और उनका सोर्सेस पे ध्यान देना है. तो सोर्सेस कौन से विटामिन डी के? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड सनलाइट. It is involved in calcification of osteoid tissues. Osteoid is a protein mixture which is secreted by osteoblast. When it mineralize, it become bone. जब ये mineralize होता है, minerals में form होता है, like छोटे कह सकते हैं कह सकते हैं, और वो जब एक के ऊपर एक जमते जाते हैं तो उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन होना. तो वो होते लेयर बनते एक बोन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स बनने में भी विटामिन डी का काफी रोल है. तो विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 2 एंजाइम, एल्कलाइन फॉस्फेट इन द इंटेस्टाइन लाइनिंग एंड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. Okay. So these 2 enzymes very important to formation of bone matrix. Bone matrix मतलब bone का जो main जब starting होना, basic जो बोलेंगे तो that is bone acid level in the blood. Amino acid is what? Proteins का ये like building blocks है amino acids. ठीक है. तो उसके रेगुलेशन के लिए भी विटामिन डी चाहिए. मैंने पहले भी बोला, एक से प्रोटीन फैट मिनरल खाने, प्रोटीन फैट कैल्शियम खाने से नहीं हो रही, प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट खाने से नहीं होगा. विटामिन एंड मिनरल्स ये हेल्पिंग चीजें हैं जो इनको एब्सॉर्ब कराने में भी काम करती हैं. काफी चीजें एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं. विटामिन डी हेल्प्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ अमीनो एसिड्स थ्रू द किडनी and thus regulate the amino acid level and also regulate the level of citric acid in tissue and bones. ठीक है. अगर हम प्रॉपरली विटामिन डी नहीं खाएंगे तो क्या होगा? अमीनो एसिड्स को हम प्रॉपरली हम यूज नहीं करेंगे और वो फिल्टर होके निकल जाएगी ब्लड के साथ. Now participation in muscle formation and metabolism. Muscle जो है that is formation with the help of vitamin D. Muscle function and metabolism में इसका रोल है. Then inhibition of cancer cell proliferation and growth. Inhibition मतलब कैंसर सेल को बनने से इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है. ओके. तो कैंसर सेल नहीं बने बॉडी में. कैंसर सेल जनरली हमारी बॉडी में कुछ कैंसर सेल हमेशा बनते रहते हैं और उसको बॉडी डिस्ट्रॉय करती रहती है. ठीक है. तो इसको बनने से रोकता कौन है? विटामिन डी एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है. ठीक है. विटामिन डी डिमिनिशेस जब वही कैंसर सेल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं, तब किसी को डायग्नोस होता है कि वो कैंसरस पीपल है. लेकिन इन जनरल भी हम अगर विटामिन ई डिफिशिएंट है, विटामिन डी डिफिशिएंट है, तो हमें कैंसर सेल, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल है जो खराब सेल बनते हैं. कैंसर सेल व्हाट मीन्स खराब सेल बनना. ठीक है. और अगर वो ज्यादा होने लगेंगे, वो मल्टीप्लाई होने लगेंगे, तो इंसान को कैंसर डायग्नोस होगा. कि मतलब बॉडी जो नॉर्मल सेल थे जो अच्छा फंक्शंस कर रहे थे, अब वो कम हो गए, जो गलत स्ट्रक्चर के बन गए, जो गलत फंक्शन कर रहे हैं, जो आयरन को कैरी नहीं कर पा रहे, जो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पा रहे पूरे सेल्स में, इस तरह के सेल बनने लग जाएंगे. तो क्या होगा? हम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे और हमें हमें डिजीज हो जाएगा. कहा जाएगा कि प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो रहा, दैट मीन्स कोई डिजीज है. तो उस डिजीज का कुछ भी नाम हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है. उस किस तरह का सेल बना है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का फॉर्मेशन हुआ है. रोल इन द इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम जो हमें
किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी बीमारी से फाइट करता है, ठीक है। अगर कुछ भी बाहर का फॉरेन बॉडी आता है, उसको बॉडी जान रहा है ये हमारे लिए नुकसान की चीज है, देन इट विल अटैक ऑन दैट और उसको खत्म करता है। लाइक कुछ भी फॉरेन बैक्टीरिया आ गया जो हमारी बॉडी को नुकसान कर सकता है, तो इम्यून सिस्टम में WBC क्या करता है, उसको जाके उसके ऊपर बैठ जाता है, उसको इनगल्फ कर लेता है और उसको खा जाता है एंड हमारी बॉडी को वापस नॉर्मल कर देता है, ठीक है। तो immune system responses that are mediated by T cell can be inhibited by large doses of calciferol. It is natural steroid. Steroid बोलते हैं ना, नहीं खाना चाहिए, बट सच में नहीं खाना चाहिए, उसके काफी साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे स्टेरॉइड है जो हम डायरेक्टली हमारी बॉडी में भी बनते हैं नेचुरली, ठीक है, और वो रोल प्ले करते हैं हेल्दी बॉडी बनाने के लिए। The deficiency of vitamin D also interferes with T cell mediated immunity, ठीक है। इम्यूनिटी को T सेल बनाते हैं इम्यूनिटी के। Now it regulates also blood pressure, okay. Blood pressure should be how much? Ideal blood pressure is 120/80. It is the ideal pressure, but we can do like +20 and -20 दोनों साइड में सिस्टोलिक डायस्टोलिक को भी हम नॉर्मल मानते हैं। अगर उससे ज्यादा हुआ तभी हम उस केस पे मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, या फिर जो भी हमें करना है या डाइट रेगुलेशन करना है तो उसके बाद ही करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ये क्या करता है विटामिन डी, आपका ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। द रेनिन एंजियोटेनिन सिस्टम रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है, रेनिन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। द सिस्टम ऑफ रेनिन इज डिक्रीज्ड बाय द calciferol through its interaction with विटामिन डी रेगुलेटर, ठीक है, VDR बोलते हैं शॉर्ट में। Though to play a role in some form of human hypertension, and adequate vitamin D level may be important for decreasing the risk of high blood pressure. So, if the person is having high blood pressure, we have to check their vitamin D also. We can check it by blood test. कुछ भी ब्लड टेस्ट जब हम रेगुलर कराते हैं ईयरली या जो भी, तो उसमें हम ब्लड टेस्ट में पता लगा सकते हैं विटामिन डी डिफिशिएंट है कि नहीं है। अभी कितना अलाउड है, कितना डाइटरी अलाउंसेस इंडिया में रिकमेंडेड है फॉर ICMR, दैट इज vitamin D are expressed in IU International Unit. IU means 1 IU is defined as the activity contained in 0.025 macrogram of cholecalciferol. Okay, cholecalciferol is nothing but vitamin D. The recommended allowances of vitamin D as suggested by ICMR for Indians is 200 to 400 international unit. A vitamin D supplement providing 400 to 800 IUS may be essential for the elderly. Elderly में ज्यादा हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो कैल्सिफिकेशन है वो कम होने लगता है, particularly who consume less milk and are totally homebound। और जनरली स्पेशली किसमें विटामिन डी डिफिशिएंसी होगा, जो हमेशा घर में ही रहते हैं, सनलाइट नहीं लेते, एक्सरसाइज बाहर नहीं करते, एंड दूसरा जो कि मिल्क कंजप्शन नहीं करते। मिल्क इज वेरी गुड सोर्स इन इंडिया फॉर विटामिन डी। सो कोई कुछ बोले मिल्क से ये होता है वो होता है, ऐसा नहीं सुनना है। यू हैव टू टेक मिल्क, ओके। इट इज वेरी हेल्दी थिंग, इट इज रिच इन प्रोटीन, रिच इन विटामिन्स, इट हैज कार्बोहाइड्रेट आल्सो, ओके। You can remove its fat layer from it, but the other part of milk is very nutritious. You can survive on milk and roti every day. If you are having milk and roti, you will not deficient on so many vitamins and nutrition. It is like we can say complete diet. अगर कुछ दो चीजें बोली जाए कि आप सिर्फ दो चीजें खा सकते हैं लाइफ में, तो आप ये दो चीजें चूज करें।
तो आपको मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिल जाएगा। Health aspects: deficiency in infants means 0 to 1 year. Infants constitute a population risk of vitamin D deficiency because of relatively large vitamin D needs. बच्चों को ही क्यों ज्यादातर डिफिशियंसी होती है विटामिन डी की, रिकेट्स की? क्योंकि उनका एक तो न्यू फॉर्मेशन हो रहा है ना, एंड बोन बढ़ रही है। लाइक अभी छोटे बच्चे में लाइक अगर 5 सेंटीमीटर खाता तो वो बढ़ के कितना होना है, उसका 100 सेंटीमीटर होना है। तो वो कहाँ से होगा? विटामिन डी चाहिए उसके लिए, फास्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो उस टाइम में रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। कब? इन्फेंट्स में, क्योंकि इन्फेंट एज ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। ओके, इतना फास्टर किसी भी एज ग्रुप में नहीं होती। लाइक बच्चा डबल हो जाता है फर्स्ट ईयर में, लेकिन ऐसा कोई भी दूसरा ईयर नहीं है। लाइक अगर हम 5 इयर्स का बच्चा और 6 इयर्स का बच्चा ले अगले 1 साल, तो वो कभी भी नहीं ऐसा होगा। लेकिन सिर्फ पहले 1 साल में बच्चा बहुत जल्दी बढ़ता है, तो उस टाइम डिफिशियंसी होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। स्पेशली टॉडलर्स में भी डिफिशियंसी देखी गई है, and mostly due to the mother is deficient for vitamin D and proteins. उसकी वजह से भी उनका मिल्क खराब होता है और बच्चे डिफिशिएंट हो जाते हैं। समटाइम्स ऊपर बाहर नहीं खेलने देते बच्चों को, धूप नहीं लगाते, इसकी वजह से भी होता है, रिकेट्स हो जाता है। और जनरली गरीब बच्चों में ज्यादा होता है लो सोशियो इकोनॉमिक में, क्योंकि उनको प्रॉपरली फूड नहीं मिल रहा है। फैट लेयर भी नहीं है बॉडी में, तो फैट लेयर नहीं है तो विटामिन डी कैसे बनेगा बॉडी में? अगर सनलाइट में दे भी रहे बच्चे को, तो अगर फैट लेयर नहीं है तो बनना मुश्किल है। Breastfed infants are particularly at risk because of low concentration of vitamin D in human milk. Human milk में बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि human milk is not good, इसका कहने का मतलब है ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मदर इज रिच इन लाइक कैल्शियम, अगर मदर का ही डिफिशिएंट होगा बॉडी, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम अगर उसको अच्छा खाना नहीं मिला, फिर डिलीवरी हो गया, डिलीवरी के बाद भी रिक्वायरमेंट बढ़ा हुआ है, उस टाइम भी नहीं मिला, उस केस में डिफिशिएंट होगा। बट अगर मदर हेल्थी है तो उसका बेबी भी हेल्थी होगा। This problem is further compounded in some infants fed human milk by the restriction of exposure of ultraviolet light for seasonal. So मेरी सोशल रीजन भी है कि आप बच्चे को सनलाइट में नहीं रख सकते शुरू में। डाइटरी एब्सेंस ऑफ विटामिन डी और लैक ऑफ यूवी एक्सपोजर कॉज द बोन डिजीज कॉल्ड रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, जो लेग्स हैं जो सीधे होने चाहिए थे वो ऐसे टर्न हो जाते हैं, अंदर की ओर ऐसे टर्न हो जाते हैं, अंदर की ओर ऐसे बेंड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोड नहीं उठा रहा है, अपना बॉडी का लोड नहीं उठा रहा है, और वो बेंड होके अंदर की ओर ऐसे अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। ठीक है, बच्चे में होगा तो इसको रिकेट्स बोलेंगे, और बड़ों में लाइक चिल्ड्रन के एज में होगा, लाइक अगर वो बच्चा 14 इयर्स तक की एज में हो रहा है तो उसको ऑस्टियोमलेसिया बोलेंगे। ठीक है, चिल्ड्रन में भी रिकेट्स बोलेंगे, एडल्ट्स में होने से ऑस्टियोमलेसिया बोलेंगे। टॉक्सिसिटी कब होगी? एक्सेस होने से टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, लेकिन इट इज वेरी रेयर केस। द एडवर्स इफेक्ट ऑफ हाई विटामिन डी इनटेक, जनरली अगर हम मेडिसिन के थ्रू लेते हैं तभी एक्सेसिव होगा, अदरवाइज जनरली डाइट और सनलाइट के थ्रू नहीं होता। तो ये क्या होगा? हाइपो कैल्सियूरिया होगा, एक्सेसिव यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन। फिर क्या होने लगेगा? आपका यूरिन से कैल्शियम निकलने लगेगा। Excuse me. Yeah, I'm taking class. Yeah, call me later, please.
excessive amount of vitamin D are not normally available for dietary sources. Okay, जैसे मैंने बताया अभी, and hence cases of vitamin D intoxication are rare. क्योंकि हम खाना में इतना नहीं खा लेते हैं, विटामिन डी डायरेक्टली फॉर्मेशन में इतना नहीं कर लेते, तो इंटॉक्सिकेशन नहीं होता है. सो इट इज वेरी रेयर. Okay, toxicity may occur in individual on excessive amount of supplement. I told you earlier, no? कि सप्लीमेंट के थ्रू खा लेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा हो सकता है. बहुत सारे मिल्क फोर्टिफाइड रहते हैं, लाइक नॉर्मल मिल्क इज लाइक जितना होना चाहिए उसमें विटामिन डी है, बट कुछ जो मार्केट के मिल्क्स होते हैं उसमें एडिशनली फोर्टिफाइड रहते हैं. फोर्टिफाइड मिल्क मतलब वो लोग आर्टिफिशियली ऐड करते हैं विटामिन डी को. ओके, आप किसी आटा का पैकेट में या किसी राइस के पैकेट में आप देख सकते हैं, उसमें मेंशन रहता है, या फिर कॉर्नफ्लेक्स के पैकेट में देख सकते हैं, वहां पे मेंशन रहता है फोर्टिफाइड विथ विटामिन ए, विटामिन ई, ऐसा कुछ मेंशन रहता है. ठीक है, तो फोर्टिफाइड मीन्स आर्टिफिशियली उसमें ऐड किया गया है. जैसे हम मेडिसिन में आर्टिफिशियली लेते हैं तो उसी तरह उसमें आर्टिफिशियली ऐड किया रहता है. तो उस केस में अगर बहुत ज्यादा ऐड किया है तब टॉक्सिसिटी हो सकती है, बट नॉर्मल मिल्क में खाने से आपको टॉक्सिसिटी नहीं होगी. और बहुत ज्यादा जब टॉक्सिसिटी होगी तो कैसे पता चल सकता है सिम्टम से? एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा. नोजिया मतलब फील होगा वॉमिटिंग का, मगर वॉमिटिंग होगी नहीं. ठीक है, उस जो क्या बोलते हैं मिचली आना ऐसा बोलते हैं ना, तो वॉमिटिंग, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग इज नोजिया, एंड वॉमिटिंग होना, उल्टी होना. ठीक है, पॉलीयूरिया मतलब बार बार यूरिन होना. ठीक है, पॉलीयूरिया. एंड पॉलीडिप्सिया, वीकनेस हो सकती है, कमजोरी लग सकती है, नर्वसनेस, घबराहट हो सकती है. ठीक है, विटामिन ई नाउ, it is also very important. It also protects cancer cells. Okay, vitamin D is the genetic term of tocopherols and tocotrienols. The tocopherols and tocotrienols occur as homologues A, B and Y. Vitamin E के sources, it is fat soluble, so it must be available in fat rich food. Okay, vitamin D is present in almost all foodstuffs. It is found in wheat germ. Wheat germ मतलब आपको जब आप होल व्हीट आटा खाएंगे तभी आपको wheat germ मिलेगा. कभी भी आपको रिफाइंड आटा में wheat germ नहीं मिलेगा. So make sure you are having wheat germ. कॉर्न भी होने से पूरा कॉर्न होना चाहिए. ठीक है, कॉर्नफ्लेक्स में नहीं होगा. नट्स में होता है, बिकॉज नट्स इज होल. जब आप देख सकते हैं उसको स्प्राउट करिए समटाइम्स, तो उसमें एक जर्म पार्ट आप देख सकते हैं. सीड्स में होता है, ऑलिव्स में होता है, स्पिनच, एस्पेरेगस, एंड एस्पेरेगस also is kind of leafy vegetable and other leafy vegetable, and vegetable oil like groundnut, soya, cotton seeds and sunflower are rich in these are rich sources. Vitamin E content of edible oil is usually proportional to the amount of polysaturated fatty acids content of the oil. इसमें जनरली पॉलीसैचुरेटेड एसिड्स जिस फैट में होते हैं आपको उसमें विटामिन ई इजीली मिल जाएगा. कॉड लीवर ऑयल इज ऑल्सो वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई. जो आप कैप्सूल्स देखते होंगे विटामिन ई का, वो कॉड नाम की एक फिश होती है जो समंदर में होती है, सी में अवेलेबल होती है. उसके लीवर से ऑयल निकाला जाता है. लीवर से क्यों? बिकॉज हमेशा हमने पढ़ा है ना, हमारी बॉडी में भी लीवर में ऑयल स्टोर होता है. तो वैसे ही फिश के, कॉड नाम की एक फिश है COD, उसके लीवर का ऑयल, लीवर से ऑयल निकाला जाता है और उसको मेडिसिन के फॉर्म में कैप्सूल के अंदर उसको स्टोर किया जाता है. इट इज वेरी रेयर अगर आप फार्मास्यूटिकल कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं विटामिन ई के लिए, तो इट इज वेरी रेयर कि आपको कोई वेजिटेरियन सोर्स मिलेगा. मैक्सिमम आर नॉन वेजिटेरियन सोर्स.
all are mostly 99% are fish cod liver oil. Absorption and storage of vitamin E. ठीक है. फिर अमर comes to me जो दिखाते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है उसमें वेजिटेरियन सोर्सेस भी है, तो कुछ आजकल के मार्केट में है, बट दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. 99% are from cod liver oil. Absorption of vegetable source महंगा क्यों है? वन थिंग, क्योंकि उसमें बहुत कम प्रोपोर्शन मिलता है, इसीलिए. Absorption of vitamin E from the intestine depends on adequate pancreatic function, biliary secretion and biliary secretion of micelle formation. Condition for absorption are likely those for dietary lipid. Dietary lipid means जो हम ऐसे lipids जो diet के through खा रहे हैं. Lipids are what? Oil, fats. Okay, that is efficient emulsification. Emulsification means उस फैट्स का, जो हमने पढ़ा है पहले डाइजेशन में कि टूटने को हम emulsification कहते हैं. ठीक है, पहले वो टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तब उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो दैट इज emulsification. Solubilization with mixed bile salt, micellar uptake by enterocyte and secretion into the circular via the lymphatic system, और lymphatic system में फिर वो circulate होता है. Emulsification takes place initially in the stomach and then in the small intestine in the presence of pancreatic and biliary secretions. Pancreatic means pancreatic juice. ठीक है, and biliary secretion means bile juice. Tocopherol esters present in processed food and vitamin supplements must be hydrolyzed in the small intestine before absorption. इनको पहले हाइड्रोलाइज होना पड़ेगा, तभी एब्सॉर्ब कर सकते हैं इनको हम, अदरवाइज हम नहीं कर सकते. विटामिन ई is transported in the blood by the plasma, lipoprotein and erythrocyte. From the nutritional perspective, the most important form of vitamin E is tocopherol. It is absorbed faster and retained better than other form. Okay. T11 is due to action of binding protein that preferentially select the form of over other form. Now there are so many functions of vitamin E. They are erythrocytes का प्रोटेक्शन करता है. लाइक एरिथ्रोसाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल इन आवर ब्लड. ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. ये नहीं होंगे तो इनका ब्रेक डाउन हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है. सारे सेल्स जो है हमारे बॉडी के, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, लाइक उसका एक कह सकते हैं कोटिंग. ठीक है, आउटर लेयर इज सेल मेम्ब्रेन, उसका प्रोटेक्शन करता है विटामिन ई. ओके, इसीलिए आप देखते होंगे लाइक कई लोग अच्छे दिखने के लिए भी विटामिन ई खाते हैं. क्यों? क्योंकि जो फेशियल सेल है उसका कोटिंग, जो सेल मेम्ब्रेन है ऊपर की जो लेयर है वो अच्छी रहेगी, तभी स्किन अच्छी दिखेगी. सो इसलिए भी दे यूज विटामिन ई. प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉइजनिंग, कुछ भी पॉइजनिंग हो उसके अगेंस्ट भी हम प्रोटेक्शन कर पाते हैं. It protects liver from injury due to carbon tetrachloride poisoning. Protection of both vitamin A and carotene. Synthesis of enzyme and protein. Enzyme and protein का synthesis भी विटामिन ई की हेल्प से होता है. प्रोटीन के लिए बहुत सी चीजें चाहिए आपको. सिंथेसिस के लिए आपको विटामिन डी भी चाहिए, विटामिन ई भी चाहिए, इट्स विटामिन सी भी चाहिए. इट्स सर्व एज अ को रिसेप्टर
in the synthesis of certain enzyme and plays a specific role in the synthesis of heme protein. Heme protein मतलब hemoglobin का जो प्रोटीन होता है that is heme protein. ठीक है. Protection of mitochondria. Mitochondria का भी प्रोटेक्ट आउटर लेयर को कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? दैट इज विटामिन ई. विटामिन ई क्यों करता है? बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ फैटी लेयर होती है, इसीलिए ये प्रोटेक्ट करके रख पाता है. It prevents from diseases also because of its antioxidant function. मैंने पीछे भी बताया ना, कैंसर से बचाता है. तो इसके एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन है. जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? जो कैंसर सेल्स बनाते हैं. तो ये क्या करता है? उन फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है. तो ये क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन करता है. ठीक है. इनहिबिटिंग सेल proliferation of smooth muscle. Vitamin E can be used for prevention and treatment of diseases. Epidemiologically, studies vitamin E influences the risk of cardiovascular disease. It has also been suggested that vitamin E supplementation may be appropriate therapeutically to moderate some aspect of degenerative disease such as Parkinson disease. Parkinson disease उसमें लोग भूल जाते हैं चीजें. ठीक है. जो न्यूरोलॉजिकल जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, लोग नाम भूलने लगते हैं लेटर. ये जनरली बाद की एज में होता है. तो न्यूरोलॉजिकल सेल्स को डीजेनरेट होने से भी विटामिन ई बचाता है. Reduce the sensitivity of neurological disorders such as tardive dyskinesia, that is potentially irreversible and involuntary movement. Involuntary movement क्या होते हैं? जो हम जानबूझ के करते हैं, लाइक ऐसे पकड़ना, हाथ खोलना. ये मैं अपने कंट्रोल से कर रही हूँ. दिस इज इनवॉलेंट्री. जो हम बिना अपने कंट्रोल के करें, दे आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स. जैसे हमारा डाइजेशन हो रहा है तो जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट हो रहा है, जो फूड अंदर जा रहा है खुद से, तो वो इनवॉलेंट्री फंक्शन है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. जो हार्ट पंप हो रहा है, ऑल टाइम हार्ट पंप हो रहा है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. दिस इज इनवॉलेंट्री मूवमेंट. ठीक है. तो इसमें ये रोल प्ले करता है. प्रिवेंट पेरीवेंट्रिकुलर हेमरेज इन प्रीटर्म बेबीज. जो पहले जन्म ले लेते हैं ना, जिनको हम प्रीमेच्योर बेबी बोलते हैं, तो उनका जो हेमरेज है, वेंट्रिकुलर हेमरेज, लाइक हार्ट में समटाइम्स हेमरेज हो जाता है, होल हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करता है विटामिन ई. अगर बेबी रिच इन विटामिन सफिशिएंट है तो उसको हेमरेज होने के चांसेस कम है. Reduced tissue injury arises from ischemia and reperfusion during surgery. Delay cataract development. Cataract development हो जाता है ना, आपने देखा होगा, आईज के ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसकी वजह से उनको ब्लर विजन होने लगता है, दिखता नहीं है. ठीक है. धुंधला दिखता है. तो कैटरैक्ट होने के पीछे भी क्या रीजन है? विटामिन ई का डिफिशिएंट होना. ठीक है. आजकल कई लोगों को भी मैंने ऐसा देखा है कि 40s में भी आजकल कैटरैक्ट होने लगा है. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो डाइट आजकल की खराब हो रही है. दे डोंट फोकस ऑन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. पहले घर का ही खाना बेसिक खाते थे तो न्यूट्रिशन मिल जाता था. अभी काफी डाइट गड़बड़ हो रही है ड्यू टू बिजी लाइफ एंड ऑल, है ना. तो काफी सारे डिजीजेस भी हो रहे हैं. And improve mobility in arthritis sufferers. जो अर्थराइटिस सफरर्स हैं, जिनको अर्थराइटिस है ना, अर्थराइटिस आपको पता होगा, नीज का जो प्रॉब्लम होता है, उनके घिस जाता है, तो मोबिलिटी, उनका मूवमेंट में हेल्प करता है विटामिन ई. तो जो भी अर्थराइटिस पेशेंट है उनको ध्यान देना है कि उनका विटामिन ई डिफिशिएंट तो नहीं है. तो वो क्या करेगा? विटामिन ई की जो सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखेगा, जितने भी बचे हुए हैं.
अभी कितना खाना है विटामिन ई? तो फीमेल्स के लिए अलग है, मेल्स के लिए अलग है. फीमेल्स के लिए 8 माइक्रोग्राम, ओके, एंड मेल्स के लिए 10 माइक्रोग्राम. It has been seen that adequacy of RDA varies with PUFA content significantly, increases intake, necessitate larger amount of vitamin E in the diet. तो दोनों में डिफरेंस है. ये भी एक रीजन है क्योंकि उनके सेल्स, बॉडी सेल्स भी डिफरेंट है, उनका बॉडी साइज चेंज होता है. मेल्स जनरली लार्जर साइज के होते हैं, दैट्स व्हाई. विटामिन ई डिफिशियंसी इन ह्यूमन इज एक्सट्रीमली रेयर, ठीक है, बहुत कम ही होता है. दिस में प्रोबेबली ड्यू टू इट्स वाइड ऑकरेंस इन नेचुरल फूड, बहुत इजीली मिल जाता है हमें. एविडेंस ऑफ डिफिशियंसी इज हाउएवर सीन इन इंडिविजुअल विद क्रोनिक फैट मेटाबॉलिज्म. Vitamin E deficiency is a cause of impaired neuromuscular function, sometimes seen in patients with disorder that interference with absorption of transport of vitamin. जिनका ट्रांसपोर्टेशन ही प्रॉपर नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, उस केस में, वैसे डिजीजेस में ही हम देखते हैं विटामिन ई की डिफिशियंसी. सिम्टम्स क्या होगा जिसका विटामिन ई डिफिशियंसी होगा? रिफ्लेक्स नहीं होगा, अचानक से फटाफट से हम रिफ्लेक्स नहीं करेंगे. लाइक अगर हम यहाँ पे पैरों में ऐसे, फुट में अगर ऐसे गुदगुदी करेंगे तो फटाफट पैर क्या होता है, ऐसे रिफ्लेक्स देता है ना. तो ये आईज के पीपल में आप टॉर्च मारेंगे, है ना, अंधेरा में रखिए और फिर उसको टॉर्च मारिए, पीपल क्या होता है, डायलेट होता है. तो ये सब क्या है, रिफ्लेक्स है, तुरंत रिएक्ट करता है जो बॉडी, दे आर रिफ्लेक्सेस. तो ये रिफ्लेक्सेस जो है ये इम्पेयर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. अगर ये प्रॉपर नहीं आ रहे, दैट मीन्स पेशेंट इज डिफिशिएंट विद विटामिन ई. इम्पेयर लोकोमोशन, प्रॉपरली चलने में प्रॉब्लम होगा. सेंसेशन इन फीट्स एंड हैंड कम हो जाएगा. अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं गुदगुदी या कुछ भी कर रहे हैं तो, या टच कर रहे हैं तो फील कम हो जाएगा, सेंसेशन कम हो जाएगा, फीट में सेंसेशन कम हो जाएगा, ठीक है. द चेंजेस इन द रेटिना, रेटिना का मैंने बोला ना, जो ब्लैक वाला पार्ट है, उसमें चेंजेस आ जाएगा. वी नीड अबाउट द कंसिक्वेंसेस ऑफ लो इनटेक ऑफ विटामिन ई ऑन द ह्यूमन बॉडी. अभी ज्यादा होगा तो क्या होगा? Very high intake of vitamin E can also elicit severe adverse reaction as described next. Vitamin E is respectively non-toxic. अगर ज्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं, अगर 2 months भी खा लिया तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट इज नॉन टॉक्सिक. बट अदर विटामिन ज्यादा होने से वो टॉक्सिसिटी कर जाते हैं. जैसे हम कैल्शियम कई बार बिना पूछे, कई लोग बिना डाइटिशियन या डॉक्टर के कंसल्टेशन के विटामिन या कैल्शियम की गोली खा लेते हैं कंटिन्यूअसली, तो क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है. सो बट विटामिन ई के केस में ऐसा नहीं होगा.